Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So as the title say and the thumbnail say, I was a kind of a person who never been into shaving. Like razor for me was a big no, but thanks to this corona and this lockdown situation, I end up using the razors. Now after these 10 months, what I have to say about these, like if you remember, I have shared the review of this Gillette Venus razor last year and मैंने आपको उसमें बताया था कि I am not impressed with this one, but now it's been 10 months that I have been using razors continuously, and yeah, there are some myths which I'm gonna burst and I'm gonna tell you whether like I will recommend this or not now after using it for 10 months. So if you're interested, then please keep on watching, and if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And if you have any further question, I generally do Q&As over there, so आप मुझे वहाँ के questions पूछ सकते हो. I would happy to answer your questions through of course my Q&A session. So yeah, now without wasting a minute, let's get started. So there are some plus and minuses of using a razor as well. तो सबसे पहले इसके plus जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है of course it's a painless process, unlike waxing. उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है कई लोगों को, but yes it's a painless process. But yeah, sometime कहीं पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर इसको नहीं चलाओगे तो of course कहीं कट वट लगने का डर रहता है, but still it's less painful than I would say waxing. Second, it's very convenient to use. You can use it anytime, you can carry this anywhere, and whenever you need it you can do it. And third will be it's very economical as well, like as compared to waxing. Now if I take my example, so ये मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि मेरी जो पार्लर लेडी है वो मेरे घर आती थी of course लॉकडाउन से पहले तक. So उसके केस में if I have to get my all waxing and everything is done, it cost me around 800 rupees per month. Now with this particular product, like I think it's for 190 rupees, and then you have to get the extra blades. So you can see ये I think मेरा जो एक ब्लेड इसके साथ आया था वो चला था मेरा. अब ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार आता है कि ये एक पर्टिकुलर ब्लेड कितना टाइम चलता है. Now guys, this particular one blade has lasted me for around 3 months. Like after lockdown, I was using it like every week, and कभी कभी alternate days पे भी हो जाता था, या मोस्टली वीक में 2 बार तो मैं कर ही लेती थी, एंड देन वीकली तो होता ही होता था. ओके, सो इन दैट केस ये बहुत आराम से आपका 3 महीने निकाल देता है. सो यू कैन कंपेयर दिस लाइक विद योर वैक्सिंग का जो खर्चा है वो आप देख सकते हो कि कितना ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू योर वैक्सिंग, एंड उससे मेस कितना क्रिएट होता है वो भी आपको पता है. So and at that point I can say it's very economical, and of course it's very easy to use. You can use it anytime. You didn't need to wait for your full hair growth, because waxing में तो अगर आपका अच्छे से growth नहीं आया है तो आप नहीं निकाल सकते हो. And in case if you have a urgent function to attend, या आपको कहीं जाना है तो of course then आप कैसे जाओगे, छोटे छोटे बाल लेके कहाँ जाओगे. So in that case these razors come handy. So the only negative point of using the razor will be of course you have to use it every alternate days, और एटलीस्ट आपको हफ्ते में तो एक बार शेविंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत लंबे बाल आ जाते हैं एंड फिर वो बड़ा गंदा सा लगता है वो लंबे बाल निकालना इसके साथ. सो दैट्स द ओनली कॉन आई फील कि फिर मेरे को हर हफ्ते करना पड़ता है. और ऐसे वैक्सिंग से क्या है कि चलो एक बार करवाया 1 महीना आराम से आपका निकल जाता है, बट विद दिस बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ आ जाता है, एंड देन यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एवरी ऑल्टरनेट डेज और एवरी वीक. नाउ लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स ऑफ यूजिंग अ रेजर. ना सबसे पहली चीज़ जो लोग बहुत क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या इसको यूज़ करने के बाद हेयर ग्रोथ जल्दी आनी शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है. ऐसा नहीं है गाइज. मैंने इसके रिव्यू में भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर थी, और मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि रेजर यूज़ करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो जल्दी होने लग जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक देयर इज़ अ प्लांट
ओके। हेयर को आप एज अ प्लांट लेके चलो। अब आप प्लांट को अगर जड़ से उखाड़ोगे तो ऑफकोर्स नया प्लांट लगने में ऑफकोर्स वहाँ पे पहले जड़ निकलेगी, उसके बाद ऊपर को वो आता है ना, ज़मीन से बाहर तब आता है। बट विद दिस केस आप क्या कर रहे हो, आप जड़ नहीं काट रहे हो, आप सिर्फ ऊपर से उसका जो वही कॉल उसका स्टेम है, आप सिर्फ उसका स्टेम काट रहे हो, जड़ें अभी भी उसकी नीचे हैं। सो डेफिनेटली अगर आप ऊपर से सिर्फ उसका स्टेम काट रहे हो तो जड़ से दोबारा स्टेम निकलने में कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर जड़ ही नहीं है नीचे, समझ रहे हो। सो इस केस में क्या होता है कि सुपरफिशली बाल निकलते हैं लेकिन अंदर जो उसका रूट है वो तो रहता है, तो वो इमीडिएटली बाहर निकल आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेज़र यूज़ करते हो तो ग्रोथ जल्दी होने शुरू हो जाती है। और एक और मैंने सुना है कि रेज़र यूज़ करो तो ज़्यादा ग्रोथ आने लग जाती है, लाइक और एक्स्ट्रा बाल आने लग जाते हैं। लाइक आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें कैसे लोगों के दिमाग में आती हैं, मे बी दे आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। बट जो ऑफकोर्स जो पोर्स हैं या जो बाल हैं वहाँ पे वो एक होल से, चलो रफली से कि एक छेद से जो एक बाल निकलता है तो वहाँ से 2 या 3 तो नहीं निकल सकते ना। दैट्स आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। सो ऐसा नहीं होता है कि हाँ रेज़र यूज़ करने से ज़्यादा ग्रोथ आने लग जाती है या बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सेकेंड मिथ इज़ कि अगर आप रेज़र यूज़ करते हो तो स्किन ड्राई एंड डल एंड रफ हो जाती है, ऐसा नहीं है। यू कैन सी आई बीन यूजिंग अ रेज़र सिंस आई थिंक नाउ इट्स 10 months नाउ, बट यू कैन सी माई स्किन इज स्टिल फील सेम, लाइक मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होता है। बट येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन वाइल यू यूजिंग दी रेज़र्स बिकॉज यू हैव टू एक्सफोलिएट योर स्किन। मेक श्योर कि आप एक्सफोलिएट करें एटलीस्ट हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार तो बॉडी स्क्रब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑफकोर्स आफ्टर शेव मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पीपल से कि हाँ स्किन डार्क हो जाती है, ऐसा नहीं है, स्किन डार्क नहीं होती है। बट इट्स जस्ट दैट कि जब आप वैक्स करते हो ना तो वैक्स आपकी पूरे स्किन पे लगती है एंड जब वो ऐसे स्ट्रिप करते हैं ना तो जो टैनिंग होती है वो भी रिमूव हो जाती है। बट विद इन दिस केस लाइक जब आप इसको चलाते हो तो टैनिंग पे ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ आपके बाल निकालता है, टैनिंग आपकी एज सच वैसे ही रहती है, तो इसलिए स्किन लोगों को डार्क लग सकती है। सो उसके केस में आई सजेस्ट कि आप स्क्रब करें जब भी आप रेज़र करते हैं उसके 2 दिन के बाद या रेज़र करने से 2 दिन पहले आप अच्छे से अपने बॉडी को स्क्रब कर लें। उससे क्या डेड स्किन सेल जो है वो रिमूव हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेगी। एंड सेकेंड, आपको जब भी शेविंग करनी है उसके बाद मॉइस्चराइज अपने स्किन को अच्छे से करें। यू कैन यूज़ बॉडी लोशंस, बॉडी बटर्स, देयर आर बॉडी ऑयल्स एज वेल, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। लाइक मेन मुद्दा है कि आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऑफ कोर्स फिर वो रफ रूखी सूखी वो अपीयर हो जाएगी। फाइनल वर्ड्स फॉर रेज़र, ऑफ कोर्स आई हैव परचेज दीज सिंपल वन एज वेल एंड मैंने इसका वीनस भी मंगवाया है, वो भी मैं यूज़ करूँगी। सो देन आई एम गोना कंपेयर ऑल दीज। लाइक of course you can see I'm repurchasing, so I have no plans to go back to waxing because I find these more economical एज लाइक प्राइस से की बात करें तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। लाइक 1 सिंगल ब्लेड लास्ट यू अप टू 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। एंड इस वाले का मैंने अभी इसको एक बार यूज़ किया है, आई एम गोना गिव दिस मोर टाइम बिकॉज ये वाला तो मैं ऑफकोर्स यूज़ कर रही हूँ पिछले 9-10 महीने से। सो इसका मुझे पता है कि ये वाला जो सिंगल एक ब्लेड है ये मेरा आराम से 3 महीने इसने निकाल दिए थे। बट इसका मैं देखती हूँ ये यूज़ एंड थ्रो वाले हैं, सो लेट्स सी ये कैसे निकलते हैं। सो इसका मैं रिव्यू जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड ऑफकोर्स इसका जो वीनस वाला है पिंक वाला वो भी मैंने मंगवाया है, उसको भी यूज़ करेंगे एंड देन उसका मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा है एंड देन वी गोना कंपेयर ऑल दीज 3. So yeah, I am doing shaving and of course now from #no shaving I am doing shaving and I am gonna do shaving with my razors of course. So bye bye to waxing and say hello to razors. That is it guys. I hope you found this video helpful. वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो ज़रूर से कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।